Very good. Sunday is not a holiday. Ajab. By what is negation of Q? Ram does not study on holiday. अरे वाह क्या बात है भाई राम studies on चल अब मुझे ये बताओ बड़ा कि यहाँ पे पी एंड क्यू कौन है बड़ा पी एंड क्यू P is the statement which is true. Q is the statement which is true. In between, I don't want any interruption. Harsh. P का value is true. Q का value is true. भाई P and Q का value is true. तो भाई मुझे ये बताओ what about negation of P and negation of Q? चल भाई एकदम easy फटाफट it is false and it is false बराबर है अब ये what is the first sentence क्या है by the first sentence is Sunday is not a holiday और राम स्टडीज ऑन द हॉलीडे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट का सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे फर्स्ट सेंटेंस का सिंबॉलिक फॉर्म राइट डाउन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस इज बट संडे इज नॉट हॉलीडे भाई मुझे कोई बताएगा it is been represented by Sunday is not a holiday it is been represented by negation of period or the symbol or Ram studies on holiday but a Ram studies on holiday it will be represented by negation of Q भाई बहुत अच्छे अब इसके बाद तो तुम लोग को आंसर फटाफट मिल ही जाएगा नेक्स्ट लाइन देयरफॉर the truth value of the given statement is the truth value of the given statement is by negation of P का value it is false or negation of Q का value it is false बराबर है by what is the connective in between और भाई अपने को तो पता है कि FF का आंसर विल बी F देख भाई कितना इजी है आया कि नहीं आंसर FF का आंसर इज F so you can write down the truth value of the given statement is
is capital F. चल भाई नेक्स्ट, फटाफट आ गया सेकेंड. If Sunday is not a holiday, then Ram studies on holiday. By the connective is if then. The connective is if then. Write down sum number 2. The symbolic form of the given statement is the symbolic form of the given statement is so by Sunday is not a holiday. By Sunday is not a holiday, it will be represented by negation of P. The connective is if then. Ram studies on holiday. By Ram studies on holiday. It will be negation of Q. Next line. Therefore, the truth value of the given statement is negation of P का value false, implies negation of Q का value false. By connective if then आया FF का आंसर is T. And don't forget to write the final answer. The truth value of the given statement is capital T. Next. Number 3. Sunday is a holiday. Wow, Sunday is a holiday. And bola and Ram studies on holiday. Write down the symbolic form of the given statement. But a Sunday is a holiday. It is been denoted by. चल बोल, कितना टाइम लेगा बोलने में. It is P. बीच में the connective is and आया and. Ram studies on holiday. It is denoted by negation of Q. Next. Therefore, मुझे ये बताओ, the truth value of the given statement is P का it is T and negation of Q का it is false. And with respect to and, चल बेटा and आया, TF का आंसर is F. The truth value of the given statement is false. भाई सब लोग को मजा आया कि नहीं? कितना इजी सम था, मजा आया कि नहीं सब लोग को? चलो भाई मजा आ गया तो भाई सब लोग मेरे लिए बड़ा दिल वाला स्माइली भेज दो बड़ा फटाफट.
हार्ट वाला स्माइली भेज दो बड़ा। भाई क्या बात है, क्या बात है। चलो बड़ा, थैंक यू थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4 is also over. Now let me start with question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 ये, अब ये करो। What is the question number 5 student? By the question number 5 states that P is a statement. He swims. He swims. Q is a statement. Water is warm. Give the verbal statements for the following symbolic statements. भाई यहाँ पे तो अब उल्टा काम करना है बड़ो। यहाँ पे सारे के सारे जो क्वेश्चन है बड़ो, वो सब सिंबॉलिक फॉर्म में, और उसका आंसर तुम्हें देना है वर्बल फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, अब तक हम लोग क्या करते थे तुम्हें पता है बड़ो? अब तक हम लोग क्या करते थे, स्टेटमेंट्स हमेशा वर्बल फॉर्म में दिए रहते थे। कौन से फॉर्म में? वर्बल। और उसको हम लोग कन्वर्ट करते थे किसमें? सिंबॉलिक फॉर्म में। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है सिंबॉलिक फॉर्म में, और उसको हमें कन्वर्ट करना है वर्बल फॉर्म में। अब मजा आएगा ना बेड़ू, अब मजा आएगा अपने को। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन करो। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन करो। P is a statement. P is the statement. He swims. अच्छा, Q is the statement. Water is. गाड़ी लगा, पतला लोग गाड़ी लगा, Water is. Warm. By P मिला Q मिला। अब मुझे ये पता पड़ा, what is will be negation of P? कौन बताएगा बड़ा मुझे? निगेशन ऑफ P कौन बताएगा? He does not swim, बराबर है बड़ा। He does not swim, बराबर है।
What is negation of Q? What is negation of Q? Water is not warm. No, it is wrong. जिसने भी बेटा यहाँ पे अपोजिट अपोजिट खेला है बेटा वो सब रॉन्ग है बेटा. नॉट वार्म, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी बेटा कि इट इज कोल्ड और इट इज कूल्ड. तो यहाँ पे तुम लोग बेटा ये जो जिसने आंसर दिया है वो रॉन्ग है आंसर बेटा. मेक अ करेक्शन. चलो अब ये देखो फर्स्ट it is P. Parth Chaturvedi is there in the class. Parth Chaturvedi. P implies P if and only if negation of Q. P if and only if negation of Q. Okay चलो सब लोग यहाँ पे ध्यान दो. अच्छा ये देखो P कौन है? He swims. negation of Q कौन है? Water is not warm. और उसको कंबाइन करना है किससे? बाय यूजिंग इफ एंड ओनली इफ. अच्छा सुनो, इफ एंड ओनली इफ जो है ना बेटा वो हमेशा बीच में आता है, बीच में. बराबर है. तो वो हिसाब से तुम लोग मुझे आंसर दो. जब मैं ये दोनों को कंबाइन करूंगा तो आंसर क्या आएगा? ही स्विम्स इफ एंड ओनली इफ द वाटर इज नॉट वार्म. परफेक्ट दिव्याशा. ही स्विम्स if and only if water is not warm. बराबर है, बराबर. You can write down the verbal statement is he swims if and only if the water is not warm. मजा आ गई यार, मजा आ गई. चल परफेक्ट. आगे नेक्स्ट नंबर 2. there is a whole negation of P और Q. स्टॉप. सब लोग बड़ा 1 मिनट ध्यान दो यहाँ पे प्लीज. एवरीवन स्टॉप, डोंट राइट. सब लोग बच्चा लोग ध्यान दो. अब यहाँ पे ना बड़ा एक बड़ा there is the whole negation of. क्या है? there is a whole negation of. whole negation. ये whole negation है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बात सच नहीं है, ये बात सच नहीं है. इट इज नॉट ट्रू दैट. ठीक है भाई, ठीक है, ये बात सच नहीं है. बट बात क्या है पहले वो तो पता करो. बात ये है कि इट इज पी और क्यू. इट इज पी और क्यू. भाई मुझे ये बताओ व्हाट इज पी? ही स्विम्स. व्हाट इज क्यू? वाटर इज वार्म. भाई ये दोनों को कंबाइन करो बाय यूजिंग द कनेक्टिव और. ही स्विम्स और वाटर इज वार्म. बट ये बात सच नहीं है, ये बात सच नहीं है. तो उसका आंसर स्टार्ट कैसे होगा? इट इज नॉट ट्रू दैट. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम,
TY-BCom और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। Not true that. It is not true that he swims, or water is warm. It is not true that he swims or water is warm. चल next. Number 3. Q implies P. यानी it is Q if then P. No, Mihir, it is wrong, bro. We cannot write. Mihir, your answer is wrong. We cannot write it. By Q implies P. Q कौन है? Water is warm. अच्छा, P कौन है? He swims. But बीच में कनेक्टिव कौन आना चाहिए बड़ा? If then. तो आंसर कैसा आएगा? If water is warm, then he swims. If water is warm, then he swims. चलो नेक्स्ट. It is Q and negation of P. Q and negation of P. अच्छा भाई, Q कौन है? Water is warm. Negation of P कौन है? He does not swim. तो कंबाइन कैसे करेगा? Water is warm and he does not swim. बराबर है. तुम लोग ने अपने तरफ से बड़ा बराबर ट्राई किया है. बराबर है. अब यहाँ पे है ना बड़ा, थोड़ा सा है ना बड़ा, मैं इम्प्रोविजन कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना. आई विल मेक अ स्लाइट चेंज एंड आई विल मेक द आंसर मोर बेटर. सब लोग बराबर ध्यान से सुनो. अच्छा बड़ा, एंड के लिए हम लोग दूसरा कौन सकते, मुझे बता. मैंने एक लेक्चर में तुम लोग को, हाँ बराबर है. बट वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट बेटा, परफेक्ट. बट अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अगर यही आंसर मैं बट से लिखता तो चेक करो बेटा, क्या ये आंसर और ज्यादा इफेक्टिव होता? चेक कर, तुम्हें खुद पता चलेगा. वाटर इज वार्म बट ही डज नॉट स्विम. चेक कर, एज कंपेयर टू एंड, बट से ज्यादा आंसर ये लग रहा है. एम आई राइट? अगर तुम लोग बड़ा वोकैबुलरी चेक करो, ग्रामर चेक करो, तो उसमें तुम्हें पता चलेगा. भाई मजा आया कि नहीं? सब लोग मुझे बताओ. एंड भी यूज कर सकते हैं, इट इज राइट बड़ा. बट सबसे ज्यादा आंसर बेटर किस पे लगा? बेटर. वी ऑलवेज सिलेक्ट द बेटर वन. तो फिर चल भाई, अगर तुम लोग को ये सब भी समझ में आ गया हो तो सब लोग फटाफट 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 बड़ा चैट बॉक्स में आग लगा दो भाई. मैं तो बोल रहा हूँ, आग लगा दो भाई सब लोग.
ये हुई ना बात भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया भाई। हर्ष ने तो फायर ब्रिगेड को भी बुला लिया है साथ साथ में। चलो बेटा, नाउ exercise number 1.4 is over, and now we can proceed with the next heading as construction of truth table. Construction of truth table. अब सब लोग बड़ा एकदम यहाँ पे ध्यान से देखना। वी आर प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट पार्ट which is called to be as construction of truth table। बराबर। तो जब भी हम लोग बड़ा ट्रूथ टेबल के ऊपर बेस सम स्टार्ट करेंगे, तो ट्रूथ टेबल के ऊपर सम सॉल्व करने के लिए हमेशा हम लोग को ये पता होना चाहिए कि वो ट्रूथ टेबल में कितने कॉलम्स हो गए और कितने रोज हो गए। क्या पता होना चाहिए? देयर विल बी हाउ मेनी कॉलम्स एंड देयर विल बी हाउ मेनी रोज। बराबर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये पता करो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉलम इज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रोज इज। रोज जो वर्टिकल अरेंजमेंट जो होता है ना बेटा, वर्टिकल अरेंजमेंट, उसको हम लोग कहते हैं कॉलम्स। मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है? वर्टिकल अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम्स। एंड हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं रोज। वर्टिकल it is columns, whereas horizontal it is called to be as a rows। बराबर। तो उसमें तुम लोग को पता होना चाहिए बेटा कि टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हो गए और कितने रोज हो गए बेटा। तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल के ऊपर बेस सम स्टार्ट करेंगे, तो ट्रूथ टेबल के ऊपर सम सॉल्व करने के लिए हमेशा हम लोग को ये पता होना चाहिए कि वो ट्रूथ टेबल में कितने कॉलम्स हो गए और कितने रोज हो गए। क्या पता होना चाहिए? देयर विल बी हाउ मेनी कॉलम्स एंड देयर विल बी हाउ मेनी रोज। बराबर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये पता करो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉलम इज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रोज इज। रोज जो वर्टिकल अरेंजमेंट जो होता है ना बेटा, वर्टिकल अरेंजमेंट, उसको हम लोग कहते हैं कॉलम्स। मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है? वर्टिकल अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम्स। एंड हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं रोज। वर्टिकल it is columns, whereas horizontal it is called to be as a rows। बराबर। तो उसमें तुम लोग को पता होना चाहिए बेटा कि टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हो गए और कितने रोज हो गए बेटा। तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रूथ टेबल जो है, ये हम लोग आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में बड़ा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। वी विल स्टार्ट विद द सम न्यू फॉर्मूलाज, है ना, विद द न्यू टाइप ऑफ सम्स, है ना। टिल देन एवरीवन टेक केयर, बाय ऑल ऑफ यू। या बाय 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 पढ़ाई ऑल के ऑफ लिए यू। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप
स्मार्ट तैयारी का साथी।